ठीक है अभी तक सब कुछ? दूसरा, प्लीज अपने पड़ोसी को बोलो, शॉर्टकट ढूंढना बंद कर दो. Please tell your neighbor, stop looking for shortcuts. फिर से बोलो, शॉर्टकट ढूंढना बंद कर दो. Stop looking for shortcuts. Faith is like a muscle. It has to be developed. विश्वास एक मसल की तरह है, उसको मजबूत किया जाता है. कोई किसी की बहुत अच्छी फिजिक है, आप उसके पास नहीं जा सकते. ब्रदर, मेरे ले हैंड ऑन मी. मेरा पेट अंदर चला जाए और मेरे मसल्स आ जाए. Someone has a good physique, you cannot go and tell them, lay hand on me, that my stomach will go in and I have good muscles. They have developed their muscles for years. उन्होंने सालों तक अपने मसल्स को डेवलप किया है. If you want to have the same result, then do what they are doing. अगर आपको वही परिणाम चाहिए तो वो करो जो उन्होंने किया है. आज बहुत सारी भीड़ है, उन्हें शॉर्टकट चाहिए. शॉर्टकट. Today many crowds they are looking for a shortcut. एक बहन मेरे पास आई. A sister came to me. बोली, अपोस्टल जी मेरे सर पे हाथ रख दो. She said, Apostle, you put your hand on my head. मैंने कहा क्या हो गया बहन? I said, what happened, sister? यानी आप हाथ रखोगे, हमें पता है हमारे फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे. She said, I know if you will lay your hands on my head, my finance will become good. मैंने कहा अच्छा? I said, really? तो पता ही नहीं था मुझे. I didn't know this. वरना तो हर रात में ऐसे सोता. Or I would have slept like this every night. Stop looking for shortcuts. Develop your faith yourself. शॉर्टकट ढूंढना बंद कर दो, अपने विश्वास को खुद मजबूत करो. अब अगर आपको सब्जी चाहिए, आप कहां जाते हो? If you need vegetable, where do you go? हाँ, कहां जाते हो? सब्जी मंडी जाते हो, क्योंकि आपको पता है सब्जी कहां मिलेगी. Because you know where you find vegetables. राइट? आपको कपड़े लेने आप कहां जाते हो? If you want to buy clothes, where do you go? आपको पता है कपड़े कहां मिलेंगे. You know where to find clothes. ऐसी आपको पता होना चाहिए विश्वास कहां मिलता है. Similarly, you should know where you can find faith. अगर विश्वास चाहिए If you want faith, तो वचन में जाइए. then go to the word. Faith comes by hearing and hearing by the word of the living God. This book of God is filled with the faith of God. विश्वास सुनने और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है. ये जो किताब है परमेश्वर के विश्वास से भरी हुई है. Amen. मुझे एक जगह इनवाइट किया जाता था बार बार जाके प्रचार करने के लिए. मैंने वहां मना कर दिया जाने के लिए. I used to be invited to one place again and again to preach. क्योंकि मैंने देखा कि जब when the word is being preached, जब वचन का प्रचार हो रहा है तो लोग बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हैं. वो बात कर रहे हैं, कोई सो रहा है, और उसके बाद लंबी लाइन लगती थी. They would be disinterested in the word and after that there will be a long line. मैंने कहा अगर इसका 10% एफर्ट वचन सुनने में लगा देता भाई तू, तो जिंदगी भर ये नहीं करना पड़ता. तू हाथ लगा रहा होता औरों के ऊपर और चंगे हो रहे होते. If you would have given 10% of that effort in receiving the word, you would have been laying hands on people. Come on man, this place is the school for champions. ये जो जगह है चैंपियंस के लिए स्कूल है ये. Amen. Hallelujah. You're not coming here for you. You are coming here for the nations. आप यहाँ अपने लिए नहीं आ रहे हो, आप देशों देशों के लिए आ रहे हो यहाँ पे. Catch the spirit of faith. विश्वास की आत्मा को पकड़ लो. Because many people don't understand this. क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझते ये बात. You can receive your miracle while you are hearing the word of God. आप जब वचन सुन रहे हो तभी अपने चमत्कार को ले सकते हो. Why wait? क्यों वेट करना है? My hands are as ordinary as your hands. मेरे हाथ आपके हाथों जितने साधारण हैं. But I can show you the way of an extraordinary word of God, which will never fail you. पर मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ उस असाधारण परमेश्वर के वचन का जो आपको कभी नाकाम नहीं होने देगा.
उदास मत हो, कई लोग उदास हो गए। हम करेंगे प्रार्थना आपके लिए, मना नहीं कर रहे। Don't be sad, we'll pray for you. Something like, yes, we'll pray for you. But while we are praying for you, we also want you to grow spiritually. But जब हम So that 5 साल बाद जब यहाँ आओ तो फिर मत करो। जब हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम चाहते हैं आप आत्मिक रूप से बढ़ो साथ में। Amen. This is my desire that each one of you will be a living testimony ये मेरी of चाहत the extraordinary works of Almighty God. ये मेरी चाहत है कि आप में से हर कोई एक जीवित गवाही हो परमेश्वर के महान कामों की आपके जीवन में जो वो करता है। Amen. भैया पूरा दिल्ली FOLJ नहीं आएगा, The entire Delhi will not come to FOLJ. मगर आप पूरे दिल्ली में जा सकते हो। But you can go to entire Delhi. So many people in your office, they are not going to come to church, but you can be equipped and you go to your office. आपके ऑफिस के बहुत से लोग शायद चर्च ना आए, लेकिन आप इक्विप होकर के ऑफिस जा सकते हो। Okay. So God calls those things which are not as if. जो बातें हैं ही नहीं, परमेश्वर उनका नाम लेके ऐसे बुलाता है कि So मानो वो rather है। than saying I'm not sick, I'm not sick, I'm not sick, तो ये कहने की जगह मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, start calling I am healed. बुलाना शुरू करो, मैं चंगा हो चुका हूँ। God calls those things which are not as if they are. परमेश्वर उन चीजों को नाम लेके ऐसे बुलाता है जो नहीं है, मानो कि वो है। Once you learn how faith operates, it's beautiful. एक बार आपने सीख लिया विश्वास कैसे काम करता है तो ये खूबसूरत होगा। कितने लोग सीखना चाहते हैं? How many people want to learn? मगर थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। But you'll have to put in some effort. फिर तो आप कर लो। Or then you do it. हमें बता देना ले हैंड सर्विस का, Just हम tell तब us when आएंगे। the lay hand service is. अगर आत्मिक योद्धा बनना है तो अपनी आत्मिक मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी करना पड़ेगा। If you want to be a champion in the spirit, you'll have to strengthen your spiritual muscles. सो परमेश्वर ने सबसे पहले इब्राहिम का नाम था इब्राम। So Abraham's name earlier was Abram. इससे पहले कि परमेश्वर उसको जातियों का पिता बनाता, God started calling him Abraham, which means father of many nations. Before God made Abraham a father of nations, he started calling him Abraham, जिसका मतलब है देशों का पिता। हम कहते हैं अरे आपको पता है वो, अरे उनके 5 बच्चे हैं। You say, oh, you know, they have 5 kids. परमेश्वर का राज्य अलग है। God's kingdom is very different. को 5 बच्चे चाहिए, थोड़ा प्रॉस्पेरिटी की टीचिंग चाहिए होगी पहले उससे। You need 5 kids, you need prosperity teaching before that. But what I'm saying is, you have to call it before it manifests. पूरा होने से पहले, दिखाई देने से पहले आपको उसको बुलाना होगा। परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला, और परमेश्वर ने क्या बोला? I have made you a father of many nations. God called Abraham and said, मैंने तुझे देशों का पिता बना दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, उस समय इब्राहिम की कितनी संतान थी? How many children did Abraham have at that moment? 0. एक भी नहीं था। आप सोचो, जब इब्राहिम बोलता, जब सारा उसे बुलाती होगी, अजी इब्राहिम जी, When Sarah would call out to him, Abraham, तो सारे लोग हंसते होंगे, all the people would have कहते laughed. होंगे ये बंदा पागल हो गया है। This guy has lost it. ये बांझ हैं दोनों, They are barren. मगर देखो ये अपने आप को जातियों के माता पिता बुला रहे हैं। And look how they call each other parents of nations.
सोचो कोई बंदा है, उस खांसता रहता है, टीबी हो रखा है, मरने वाला है, और परमेश्वर कहता है तेरा नाम है आज से स्वस्थ कुमार. Imagine someone has TB and this, and they are coughing all the time in bad condition. God says your name is healthy. और हेल्दी सिंह. और उसकी बीवी कह रही है अरे हेल्दी सिंह, वो कह रहे हाँ बताओ. You're laughing. So in the times of Abraham, people would be laughing. जैसे आप हंस रहे हो वैसे ही अब्राहम के समय में लोग भी हंसते होंगे उन पे. Because first people will ridicule your faith, then they will see you walking in the same faith that you have been talking about. क्योंकि पहले लोग आपके विश्वास का मजाक बनाएंगे और तब लोग देखेंगे जिस विश्वास की आप बात कर रहे थे उसमें अब आप चल रहे हो. And then they will say, teach us how to do it. और फिर कहेंगे हमें भी सिखाओ कैसे किया. When we started to speak the language of faith when we were 20, जब हम 20 लोग थे, तब जब मैं कहता था तो कई पास्टर मजाक उड़ाते, कहते हैं देखो ये पागल हो गई है, कुछ जवान लड़के ये घमंड से भरे हुए, देखो कैसे बात करते हैं. अभी क्लास पास्टर्स मीटिंग में वो पास्टर मेरे पास आए, कहने लगे क्या आप हमें सिखा सकते हो चर्च ग्रोथ के बारे में. When we were 20 people, some pastors mocked us saying these young boys they have gone crazy, and now last pastors meeting those same pastors came and said teach us how to grow the church. हम बाद में बोलते हैं, परमेश्वर पहले बोलता है. We say it afterwards, God says it first. God said and God saw in Genesis. परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने देखा उत्पत्ति में. हम कहते हैं पहले दिखाओ, We say first show, तो बोल देंगे. then we will say it. परमेश्वर कहता है बोल तो मैं तुझे दिखा दूंगा. God says say and I will show it to you. If you want to change your scenery, you will have to change your sound. अगर आप अपने सामने के दृश्य को बदलना चाहते हो तो पहले अपनी ध्वनि को बदलो. So परमेश्वर ने अब्राहम को अब्राहम बनाने था तो सबसे पहले उसको क्या किया, उसकी आइडेंटिटी चेंज कर दी, उसका नाम अब्राहम रख दिया. Because God wanted to make Abraham, he first changed his name, his identity. एक बिजनेसमैन है मेरे पास आए, कह रहा प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें लॉस ना हो. मैंने कहा ये क्या प्रार्थना हुई भाई. A businessman came to me and said, please pray that we would not suffer loss. I said, what kind of prayer is that? ठीक है, ये प्रार्थना कर लो, लॉस नहीं हुआ और प्रॉफिट भी नहीं हुआ, जीरो है, अब क्या करोगे? I said, okay, we pray, no loss and no profit, you're at zero. Now what will you do? God calls those things which are not as if they are. परमेश्वर उन बातों को जो है ही नहीं नाम लेकर ऐसे बुलाता है जैसे कि वो हैं. जब हम 20 लोग थे, मैं अपनी आंखें बंद करता था और मैं देखता था पूरा कमरा भरा हुआ है लोगों से, और मैं कहता था प्रभु तेरा धन्यवाद, ये दिल्ली का सबसे बड़ी चर्च होगी. When there were 20 people in the church, I would close my eyes and see the place packed with people, and I would say, thank you, Father, this will be the biggest church of Delhi. और अब लोग जो ये देख रहे हैं वो तब बोल रहे हैं, अब मैं कुछ और बोल रहा हूँ, वो देखने वाले हो आप. And now when people are seeing this, they are saying it, but I am seeing something else which you will see soon. Amen. दिल्ली में चर्चेस स्टेडियम भरने वाली हैं यीशु के नाम में. Delhi churches will fill stadiums in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Okay, so परमेश्वर ने अब्राहम को, अब देखिए क्या हुआ. परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया, एक प्रतिज्ञा दी. क्या दी? एक प्रॉमिस करी, एक प्रतिज्ञा दी. God gave a promise to Abraham. और बोला मैंने तुझे जातियों का पिता बनाया है. And said, I have made you father of nations. अब आप में से कई लोग यहाँ पर हैं. There are some people. You have a promise. जिनके पास But वायदा that है. promise has not manifested. पर वो वायदा अभी तक प्रकट नहीं हुआ. And now you're discouraged. और अब आप निराश हो गए. Some of you have given up that it will never happen. आप में से कुछ ने तो हार मान ली, कभी नहीं होगा. That's where we have to have resilient faith. इस जगह पर हमें अटल विश्वास की आवश्यकता है. आप जानते हैं इसहाक इब्राहिम को कितने साल बाद मिला? Do you know after how many years was Isaac born to Abraham? 1, 1 year? 5, 5 years? 10, 10 years? 15, 15? 20, 20? 25. 25?
मगर 25 साल अब्राहम कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया नहीं, परमेश्वर की महिमा करता रहा, प्रतिज्ञा में अड़ग रहा। उसने कहा अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, अगर आपके घर वाले आज प्रभु में नहीं हैं, पकड़ लो प्रतिज्ञा को, चाहे भले ही दिखते नहीं है प्रभु में आते हुए। अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है तो वो पूरी होगी यीशु के नाम में। Even if you don't see your family in the Lord today, if God has promised, then take hold of the promise and your family shall be saved in Jesus' name. Paul tells Timothy, hold on to the prophecies that you have received and wage a warfare. पौलुस कहता है जो भविष्यवाणियां तुझे मिली है उनको थामे रख और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। आपको जानते हैं, मैं आपको गवाहियों पे गवाहियां बता सकता हूं, कितने बच्चे मरे नहीं जिनके ऊपर एक भविष्यवाणी का शब्द था, उनके माँ बाप ने पकड़ लिया। मर ही नहीं सकता है, डॉक्टर कह रहे मर जाएगा, कह रहे मर ही नहीं सकता, प्रभु ने कहा ये प्रभु का दास बनेगा, ये मर नहीं सकता। They waged a warfare with the prophetic word that they have received. I can tell you so many testimonies of where the parents got hold of a prophetic word released over the child, that the child will be a servant of God. When the doctor said the child will not survive, the child will die, the parents said no, he cannot die, he will be a man of God when he grows up. बगल वाले को बोलो टेंट लगा लो। Tell What am I saying? If God has given you a promise, टेंट लगा लो वहां पे, भैया हिलना वाले नहीं है, हम यहीं रहेंगे अब। अगर परमेश्वर ने आपको वादा दिया है, टेंट लगा लो, do not move from there. Pitch your tent. अपना टेंट लगा लो। Come what may, I am unshakable because my God is not a man that he would lie. If he has said it, he will perform it. अगर मेरे परमेश्वर ने वादा कर दिया है तो वो पूरा करके ही उसको रहेगा। मैं इस जगह से हिलने वाला नहीं हूं। Amen.